ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵੀਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।
ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ। ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ। ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ। ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ। ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ।
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੋਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ
ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाण पालख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। विच सरहंद जालमा फड़ के, विच सरहंद जालमा फड़ के नीहा बीच खलारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। सरहंद दे विच जबर जुलम सिदक सबर दी लड़ाई। जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की इसने छोटे साहबजादियां नूं वरगला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लिआंदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता। इथों तक आखिया कि तुहानू पीर बना दिता जाएगा। कचहरी लगी हुई है, इस कचहरी दे विच वेखो कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर। बाणी विच महाराज कहते हैं, कूड़ निखुटै नानका
ओढ़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ਇਹ। बड़ी कोशिश की थी इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावन दे वास्ते। इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान कीता है। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। विच सरहंद जालिमा फड़ के, विच सरहंद जालिमा फड़ के नीहां विच खलारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। इन मनावन लई जालिमा बहुता जोर लगाया। इन मनावन लई जालिमा बहुता जोर लगाया। धन दौलत पूरा दिया डोलिया दा लालच दिखलाया। पर धन धन ओ निके बच्चे, पर धन धन ओ निके बच्चे सिद्ध को मूल नहारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। जद ना मन्नी इन बालिका सुबह गुस्सा खाया। जद ना मन्नी इन बालिका सुबह गुस्सा खाया। खोल किताब पढ़ी आयत फिर कादी फतवा लाया। खोल किताब पढ़ी आयत फिर काजी फतवा लाया। चिड़ द्यो नीहा विच इनानू, चिड़ द्यो नीहा विच इनानू वेखण लोकी सारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। पाके हुक्म जलादान फिर कीती शुरू चिराई। पाके हुक्म जलादान फिर कीती शुरू चिराई। जबर जुलम ते सिदक सबर दी हुंदी पई लड़ाई। तक के इस जुल्मी साके नूं, तक के इस जुल्मी साके नूं कंबे अंबर तारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। बिच सरहद जालिमा फड़ के,
बिच सरहद जालमा फड़ के नीहा बीच खलारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फर्जंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फर्जंद प्यारे। मखना दे नाल पाली जोड़ी होली देवस होई, मखना दे नाल पाली जोड़ी होली देवस होई। 9 ते 7 साल दिया जिंदा निहा विच समोई, 9 ते 7 साल दिया जिंदा निहा विच समोई। निके निके सोहणे सोहणे, निके निके सोहणे सोहणे कोमल प्यारे प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फर्जंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फर्जंद प्यारे। बिच सरहद जालमा फड़ के, बिच सरहद जालमा फड़ के नीहा बीच खलारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फर्जंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फर्जंद प्यारे। जिन्हां बच्चियां ने कदे जमीन ते पैर नहीं सी पाया, हमेशा मखमल दे गद्दियां विच सौण वाले, मक्खण मलाइयां नाल पाले होए, उमरां भी बड़ियां छोटियां छोटियां, पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी। बड़ा लालच दिता, डराबे दिते, इथों तक भी कहा कि सूबे ने आख्या ऐ बच्चेओ, तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद हो गया है, जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने, तुसी हुण साडी कैद विच हो, जे तुहानू छड़ दिता जाए तां तुसी की करोगे? आ वेखो जरा अमृत दी शक्ति, उम्र दा तकाजा नहीं, अमृत दी शक्ति, गुरु कलगीधर पातशाह जी दी बख्शिश। ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने, आखण लगे कि सानू पहला ते ये उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा। सूबे नू क्या पहला ते सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे, होर सिंघां नू तैयार करांगे, अमृत छका करके फौज तैयार करांगे, ते ओ फौज जदों तैयार बर तैयार होवेगी फिर जुल्म दे टाकरे ते आके मैदाने जंग विच डटांगे, भावें पोरियां पोरियां कट के शहादतां क्यों ना प्राप्त करनियां पैण, अखीरले दम तक जुल्म दे खिलाफ लड़दे रहांगे। इत्थे एक गल होर वर्णन योग है जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि यह गल सुनी तां मलेरकोटले दा नवाब अश अश कर उठा, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह। लेकिन कोल ही खड़िया सी सुच्चानंद दीवान, कहन लगा ए नवाब साहब, सप दे बच्चे हमेशा सप ही हुंदे हैं, इन्हां दा मुंह बाहर कड्ढण तो पहला पहला ही सिर फे दिता जाना चाहिए है, इन्हां नूं खत्म कर देना चाहिए है।
ਤੇ ਫਤਵਾ ਵੀ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਣਵਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਂਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਂਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਬੈਠੀ ਐ ਪੰਥ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੁਲਾਰੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ, ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ। ये जो दिन चल रहे हैं आजकल, इसे कहते हैं शहीदी दिहाड़ा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 4 साहिबजादों की शहीदी दिहाड़ा। इस वक्त इतनी ठंड है कि यहाँ पर लोग बाहर बैठना पसंद नहीं करते, संगत कम हो जाती है, ठंड लगती है। पंजाब में इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। घर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जहाँ पर इन 4 साहिबजादों को माता गुजरी के साथ रखा गया तो उस बुर्ज के दर्शन दास ने किए हैं वहाँ जाकर, फतेहगढ़ साहब में। खुला बुर्ज है, आसपास खेत है, कुछ भी नहीं बना हुआ आज तक वहाँ पर। उस बुर्ज में पूरी रात रखा 2 छोटे साहिबजादों और माता गुजरी को। 5 साल की उम्र, 7 साल की उम्र। दास काफ़ी समय से सोच रहा है कि 4 साहिबजादों की शहीदी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन ले लें, गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। हम ये बताएं कि उन्होंने शहीदी दी, ठीक है, पर उसमें शिक्षा क्या छिपी है। शिक्षा यही है, बहुत बड़ा ज्ञान छिपा है इसमें, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है। हमारे घर में किसी एक की मौत हो जाए तो हमारी पागलों जैसी हालत हो जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम भूल ही नहीं पाते। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी अपने हाथों से अपने पिता को भेजते हैं कि जाओ हिंदू धर्म को बचाओ, अपनी शहीदी दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने 4 पुत्र को खुद अपने हाथों से तैयार करके भेजते हैं, बड़े साहिबजादों को जाओ शहीदी प्राप्त करो, और प्रसन्न रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 4 साहिबजादे पिक्चर सबने लगभग देखी होगी। क्या किसी भी साहिबजादे के मुख पर दुख का कोई भी दुख का एहसास दिखाई दिया आपको? क्यों? ये खास हो जाए। कुंती को क्या वर दिया कृष्ण जी? दुख आएगा जरूर, पर महसूस नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 साहिबजादे, बड़े साहिबजादे आंखों के सामने शहीद करवा दिए।
दो साहिबजादे छोटे और माता गुजरी सरसा नदी को क्रॉस करते हुए बिछड़ गए, पार करते हुए बिछड़ गए। ध्यान देना, सरसा नदी को पार करते हुए माँ भी बिछड़ गई, बच्चे भी बिछड़ गए। हमारे जैसा कोई होता तो ढूंढता रहता, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ढूंढते रहते हैं। पर सरसा नदी का किनारा पार करके साखी क्या है? दयाल सिंह को कहते हैं अमृत वेला हो गया है, आशाई दीवार का कीर्तन शुरू करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उस वक्त की घटना है, उसी वक्त की, जब छोटे साहिबजादे बिछड़ गए हैं, आदमी को कुछ सूझता नहीं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि अमृत वेला हो गया है, संभालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या मतलब है इसका? कि जिसके हृदय में नाम प्रवेश कर गया, जिसके हृदय में नाम प्रवेश कर गया, ये जो अखबारों में लिखा होता है ना कि आओ आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ऐड चलती है, ये दुख दूर वो दुख दूर, ये झूठ है। दुख कभी दूर हो ही नहीं सकते। तो अगर ये जन्म है तो मरण तो दुख है ही। जन्म ले लिया मतलब दुख सुख चलते रहेंगे, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चलते ही रहेंगे। पर जिसके हृदय में नाम प्रवेश कर गया, जिसको गुरु ने अमृत वेला बख्श दिया, उसका मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, दुख आएगा जरूर पर महसूस नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये शिक्षा है। इन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ लो, जितने महापुरुष हैं सारा जीवन पढ़ लो, जितना गुरु इतिहास है, नेम कभी नहीं छोड़ा किसी ने, अमृत वेला कभी नहीं छोड़ा, सिमरन कभी नहीं छोड़ा। और जो इसको पकड़ के रखते हैं, दुख आते जरूर हैं, आएंगे ही आएंगे, पर असर नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही सबसे बड़ी शिक्षा है चार साहिबजादों की शहीदी में, कि अपना जीवन बनाओ। बाबा दीप सिंह जी महाराज नेम, साध संगत जी नेम, सिर्फ रात का नेम बता रहे हैं आपको। 101 पाठ श्री जपजी साहब जी के। दमदमा साहब में आज भी वो कमरा बना हुआ है जहाँ पर बाबा दीप सिंह जी रात को बैठ जाते थे स्नान करके। एक तरफ एक घड़ा पड़ा है पानी का, एक तरफ एक घड़ा पड़ा है चनों का, भुजे हुए चनों का। कितने कितने घंटे सिमरन करती है। अगर भूख लग गई बीच में तो थोड़े चने खाकर पानी पी लिया, पर उठते नहीं है। 101 पाठ श्री जपजी साहब जी के करके उठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो बाबा दीप सिंह जी अपना शीश अपने तली पर रखकर कितने किलोमीटर चलकर हरमंदिर साहब को आजाद करवाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक चीरा लग जाए, एक कट लग जाए तो हमें चैन नहीं आता। अपना शीश तली पर रखकर, कहाँ से आई शक्ति? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक के घर केवल नाम, नाम, सारी बात यहाँ पर नाम की है। जिन्होंने अपना जीवन संभाला, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ जितने भी 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, जितने भी ये आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तप कर रहे थे हेमकुंड साहब के पर्वतों पर। जब निरंकार का हुक्म हुआ जाओ दुष्टों का संहार करो, धरती पर जाओ, तो आसपास जितने भी ऋषि मुनि तप कर रहे थे, उन्होंने बेनती की हमें भी साथ ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ये 5 साल की उम्र में शहीदी प्राप्त करना, 7 साल की उम्र में, ये कोई आम लोग नहीं थे, ये वो तपस्वी थे जो साथ में आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन सुनिया हमारे सजन एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। तिस 10 प्यारे
सिर तरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजे एक पोरी दर्शन दीजे ओ हाल मुरीदा दा कहना 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 मित्र प्यार हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यार हाल मुरीदा दा कहना ओ हाल मुरीदा दा कहना हाल मुरीदा दा कहना हाल मुरीदा दा कहना हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यार हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यार हाल मुरीदा दा कहना तुझ बिन रोग रचाया रोडन तुझ बिन रोग रचाया रोडन तुझ बिन रोग रचाया रोडन तुझ बिन रोग नाग निवासा दे रहना नाग निवासा दे रहना नाग निवासा दे रहना नाग निवासा दे रहना मित्र प्यार हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यार हाल मुरीदा दा कहना हाल मुरीदा दा कहना
गुरु नानक धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आनंदपुर साहिब का किला छूट चुका है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी शहीद हो चुके हैं। बहुत सारी तादाद में सिखों की फौज भी शहीद हो चुकी है। सारा खजाना लुट गया है, कुछ भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास कुछ सिख जो हैं वो उदास बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास बैठे हैं। और जब उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ देखा, चेहरे की तरफ, तो शांत चेहरा, ना खुशी ना उदासी, नूरानी चेहरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घट घट के अंतर की जानत, अंतर्जामी पातशाह, सिखों से कहने लगे, भाई उदास क्यों हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिख हैरानी से कहते हैं, पातशाह कुछ भी नहीं बचा, राजपाट भी नहीं, घोड़े भी नहीं, सेना भी नहीं, साहिबजादे भी शहीद हो गए, आप कहते हो उदास क्यों हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखों से कहा, धरती पर बैठे थे, कहने लगे इस मिट्टी में लकीरें खींचो 4-5। हुक्म मारकर सिखों ने मिट्टी में लकीरें खींची, 4-5 लकीरें खींची। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, इन लकीरों को मिटा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लकीरों को मिटा दिया सिखों ने। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, एक बात बताओ, जब लकीरें बनाई थी कोई खुशी हुई थी? कहने लगे, लकीरें बनाने में क्या खुशी? जब मिटाई थी कोई दुख हुआ था? सिख कहने लगे, नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उत्तर दिया, इसी प्रकार जब निरंकार ने हमें सब कुछ दिया था, साहिबजादे, राजपाट, तो हमें कोई खुशी नहीं हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सब वापस ले लिया है तो हमें कोई दुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्या अवस्था है साथ संगत जी? ये कैसी अवस्था है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परिवार का विछोड़ा हो गया है सरसा नदी में। छोटे साहिबजादे और माता जी भी बिछड़ गए, कोई नहीं है साथ में से केवल 3 सिखों के। अमृत वेले का समय है, हम जैसा कोई होता तो भगवान को उलामे दे रहा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सरसा नदी के किनारे अमृत वेले का समय सिख देखकर हैरान हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो ये नहीं कह रहे, हे निरंकार तूने मेरे साथ क्या किया, मेरे बच्चे शहीद हो गए, मेरी सेना खत्म हो गई, मेरा राजपाट खत्म हो गया। नहीं, वो निरंकार से कह रहे हैं, तेरे बिना मैं दुखी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुझसे बिछड़कर मैं दुखी हूँ, पदार्थों से बिछड़कर नहीं, परिवार से बिछड़कर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कैसी अवस्था है? ये कैसी अवस्था है जो हमारे लिए मानना तो नामुमकिन है, मेरे ख्याल से समझना भी नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मानने की तो बात ही छोड़ दो, हमारी वो अवस्था। पर ये बात को समझना भी इतनी गहरी बात है, हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। कैसे हो सकता है कि किसी का बेटा मर जाए और वो रोए नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हमें ये समझा कर गए हैं कि ये अवस्था होती है, हमें ज्ञान देकर गए हैं।
और इसके प्रमाणित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी करती है। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। नहीं निंदिया नहीं उस तट जाके लोभ मोह अभिमाना। हरक सोकते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जह पर से नाही, तय कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जह नर को कीनी, गुर कृपा जह नर को कीनी। ते जुगत पछाने, नानक लीन पयो गोविंद स्यो। जो पानी संग पानी, गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो गई, ये जुगती केवल और केवल वो पहचान सकता है। हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कौन सी जुगती? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके लिए सुख और दुख एक बराबर हो, ना किसी की निंदा करता हो, ना किसी की निंदा से आहत होता हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। न निंदिया न उस्तत जाके, उसकी कोई बड़ाई करे तो अहंकार ना करे, कोई बुराई करे तो बुरा ना माने। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। हरख सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना मान से खुश होता है, ना अपमान से दुखी। हमारा कोई थोड़ा सा अपमान कर दे, जब तक बदला न ले लें चैन नहीं आता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कैसी अवस्था है? बादशाह कहते हैं तेरी भी ये अवस्था हो सकती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो अवस्था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में है, ये है तभी लिखा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर मिलेगी उसको किसको? गुरु कृपा जय नर को कीनी, जिसके ऊपर गुरु कृपा कर दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज समझाया करते थे, मानते हैं कि ये अवस्था हमारी नहीं हो सकती जो गुरुओं की है, पर उसके ऊपर कुछ % तो चले। हर से बोलिए धन गुरु नानक, 5%, 10% तो चले। ठीक है, इतने बड़े बड़े दुख हम नहीं झेल सकते, छोटे छोटे दुखों को तो झेल लें। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे कई सत्संगियों को मैं जानता हूँ, साथ संगत जी, एक इच्छा पूरी नहीं हुई, अमृत वेला छोड़ दिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कंप्लेन करने आते हैं, हम अमृत वेले आते थे, भगवान ने हमारी ये इच्छा पूरी नहीं की, हम नहीं आएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर अपने बेटों को शहीद कराकर शुक्राने का शब्द पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर ऐसे हम हैं जो शिकायत करते नहीं थकते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कम से कम इससे ऊपर तो उठ जाए, कम से कम। पर ये होगा कैसे? आइए 2 पंक्तियां पढ़ी, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। हाल मुरीदा
सोई दादा केला। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि हम दुखी कब होते हैं, हम सुखी कब होते हैं। इस अवस्था पर कैसे चलें, इस अवस्था को कैसे पाएं, इसे समझने से पहले यह समझना होगा कि हम दुखी कब होते हैं। एक बड़ा ही धनवान सेठ महापुरुषों के पास आया कि मेरे पास कई बंगले हैं, कई गाड़ियां हैं, दुनिया का कोई पदार्थ नहीं जो मेरे पास नहीं है, पर मैं फिर भी दुखी हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे सुखी होने का रास्ता बताइए। महापुरुष कहने लगे कल आना, कल सुबह आना, मैं तुम्हें सुखी होने का रास्ता बताऊंगा। सेठ चला गया। अगले दिन सुबह आया तो क्या देखता है, महापुरुष अपनी झोंपड़ी के बाहर मिट्टी में कुछ ढूंढ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ पास आकर पूछता है, महापुरुषों क्या गुम गया है। कहने लगे एक बड़ी कीमती अंगूठी थी मेरे पास, वो गिर गई है, वो ढूंढ रहा हूं, वो गुम हो गई है। सेठ भी ढूंढने लगा। काफी समय हो गया, जब अंगूठी नहीं मिली, सेठ पूछने लगा कहाँ गिरी थी, थोड़ा बताओ तो सही, समझ में नहीं आ रहा। महापुरुष कहने लगे गिरी तो झोपड़ी के अंदर थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ कहने लगा कमाल के हो आप, मैं तो आपके पास आया था कि आप ज्ञानी हो, जब अंगूठी अंदर गिरी है आप बाहर कैसे ढूंढ रहे हो। महापुरुष कहने लगे अंदर अंधेरा है ना, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, बाहर रोशनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ कहने लगा जहां अंगूठी गिरी है वहीं ढूंढो, चाहे अंधेरा क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे बस यही बात तुझे समझानी थी। तू सुख ढूंढ रहा है पदार्थों में जहां में है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु तू कहता है तेरे पास इतने बंगले, इतनी गाड़ियां, ये परिवार, सब कुछ, पर सुख इनमें है ही नहीं। तू वहां ढूंढ रहा है, सुख है तेरे अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुझे दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर अंधेरा है। अंदर नाम की रोशनी पैदा कर, तुझे अंदर सुख मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम का दीपक जला अपने अंदर, तुझे अंदर ही सुख मिल जाएगा, बाहर नहीं मिलेगा। महापुरुषों ने दृष्टांत दिया, जिस प्रकार रेगिस्तान में प्यासे को चमकती हुई रेत पानी नजर आती है, पास में जाता है तो फिर रेत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसी प्रकार हमें लगता है कि इन पदार्थों में सुख है, पर जब पदार्थ पा लेते हैं तब ज्ञान होता है कि इनमें तो सुख है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए महापुरुष समझाया करते थे, जितने अमीर लोग डिप्रेशन में जाते हैं गरीब नहीं जाते हैं, क्योंकि अमीरों को यह ज्ञान हो गया है, सब कुछ पाने के बाद भी जब सुख नहीं मिला अब कहां मिलेगा, डिप्रेस हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरीब को एक चारा होता है, एक रोशनी दिखाई देती है, मैं इसीलिए दुखी हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, जिस दिन अमीर हो गया मैं सुखी हो जाऊंगा, इसीलिए वो डिप्रेशन में नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब कुछ पाकर ही पता चलता है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहा करते थे, सब कुछ, कहने लगे मैं सारी जिंदगी प्रवचन करता रहा हूं, सारी जिंदगी, अब मुझसे पूछो मुझे कितना ज्ञान है, मुझे अब मैं कह सकता हूं, कहने लगे स्टेज पर बैठकर कि मुझे इतना सा भी ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस अवस्था को कैसे पाएं, कैसे पाएं इस अवस्था को? एक ही तरीका है, एक ही तरीका। परिस्थितियां चाहे बदलती जाएं, जिसकी मन स्थिति एक हो जाए। ध्यान देना, इंसान के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर जिसकी मन स्थिति स्थिर हो गई उसे फिर दुख नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? गुरबानी इस बात को प्रमाणित करती है, श्रवण कीजिए। हर का सिमरन जो करे,
सो सुखिया संसार। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कदे न डोले जिस राखे सिरजनहार। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। गुरबाणी कह रही है, गुरबाणी हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। गुरु कह रहा है कि जो सिमरन करेगा वो सुखी रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु क्यों? नानक। उसकी मन स्थिति स्थिर हो जाएगी। इत उत कदे ना डोले जिसे राखे सिरजनहार। फिर वो डोलेगा नहीं। इसका दृष्टांत, दो मित्र मिलकर एक बिजनेस करते हैं। दो मित्र मिलकर एक बिजनेस करते हैं, 1 साल तक बिजनेस करते हैं, 10 लाख का प्रॉफिट होता है। दोनों को 5-5 लाख मिलते हैं। एक खुश है, दूसरा दुखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों की परिस्थितियां एक है पर मन स्थिति अलग अलग है। एक को पूछा, भाई तू सुखी क्यों है? कहने लगा, मैंने सोचा था कि 2.5 लाख बचेंगे, 5 लाख बच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसलिए मैं खुश हूं। दूसरे से पूछा, तू दुखी क्यों? कहने लगा, मैंने सोचा था 20 लाख बचेंगे, 5 लाख बचे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिस्थितियां दोनों के लिए एक जैसी हैं, 5-5 लाख दोनों को मिले, पर एक दुखी है, एक सुखी है, क्योंकि मन स्थिति अलग अलग है। महापुरुष समझाया करते थे, जिससे जितनी ज्यादा उम्मीद रखोगे उतना ज्यादा दुख पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना कम दुख पाओगे। उम्मीद नहीं रखोगे दुख नहीं पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक और छोटा सा दृष्टांत, हम 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर साथ साथ में विचार आगे बढ़ाएंगे। सारे मिलकर गाएंगे। हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 2 कपड़ों की दुकानें हैं, साथ साथ में दोनों में आग लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों में आग लग गई, सारा सामान जलकर खाक हो गया। कुछ लोग मिलकर एक के घर में गए दुख प्रकट करने। वो दुखी बैठा है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वैसे तो हमें कोई दुख आता है ना, तो हम किसी पर भी उंगली कर देते हैं कि इसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया। जब कोई नहीं दिखता तो उंगली ऊपर कर देते हैं कि भगवान ने किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जबकि गुरबाणी कहती है, दद्दे दोष न देव किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। कि बिना कसूर के सजा नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। है वो दुखी है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लोगों ने उसे समझाया बुझाया जो करते थे, अब दूसरे के घर में चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने घर में पाठ रखाया हुआ है शुक्राने का, खुश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उससे पूछा, भाई तेरी भी तो दुकान जली है, तेरा भी तो सामान जला है, तू किस बात का शुक्राना कर रहा है? घर में लोगों को इकट्ठा करके रखा है। कहने लगे, मेरी जान बच गई, ये क्या कम है? अगर मैं भी साथ में जलकर मर जाता दुकान तो मैं फिर से बना लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
परिस्थिति दोनों के लिए एक जैसी है, मन स्थिति अलग अलग है। और ये मन स्थिति एक रखने का एक ही साधन है साध संगत जी, एक ही साधन, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, ना योगा ना मेडिटेशन, केवल एक तरीका है। क्या? सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कदे न डोले जिस राखे सिरजनहार, इत उत कदे न डोले जिस राखे सिरजनहार। ओ हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा दा कहना। ओ हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा दा कहना, 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 हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना। मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना। हो हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना।
जहान हुक्म च तेरे सारा जहान सुनदा है सब दी मेरी भी सुनी गुरु नानक मेरी बाना छड़ी गुरु नानक मेरी बाना छड़ी
के देख लिया कोई ना किसे दा साथी। मैं सब था फिर के देख लिया कोई ना किसे दा साथी। मैं सब था फिर के देख लिया कोई ना किसे दा साथी। मैं सब था फिर के देख लिया कोई ना किसे दा साथी। मैं सब मिल के देख लिया मैं सब मिल के देख लिया एक तेरा मिलना बाकी। मैं सब का होके देख लिया एक तेरा होना बाकी। मैं सब का होके देख लिया एक तेरा होना बाकी। बाकी जिन बाणी गुरन जी पड़ी प्रेम सा प्रेम सा। जिन बाणी गुरन जी पड़ी प्रेम सा प्रेम सा। जिन बाणी गुरन जी पड़ी प्रेम सा प्रेम सा। बाणी गुरन जी पड़ी प्रेम सा प्रेम सा। जिन दर्शन गुरन जो कयो नेम सा नेम सा। दर्शन गुरन जो कयो नेम सा नेम सा। जिन दर्शन गुरन जो कयो नेम सा नेम सा। जिन दर्शन गुरन जो कयो नेम सा नेम सा। सोना खाइंदो खता सदा मानिंदो मजा जैके वाहे गुरु जी ओट। सोना खाइंदो खता सदा मानिंदो मजा जैके वाहे गुरु जी ओट। सबे बैरी भर लखे दुश्मन चरण। सबे बैरी भर लखे दुश्मन जैखे नानक शाह जी ओट। नानक शाह जी ओट। तैके लगंदी न खाए चोट। तैके लगंदी न खाए चोट। जैखे नानक शाह जी ओट। लगंदी न खाए चोट। लगंदी न खाए चोट। सबे बैरी भर लखे दुश्मन चरण। सबे बैरी भर लखे दुश्मन चरण। जैके नानक शाह जी ओट। जीवन दा फुल नित नहीं खिलदा। बार बार नहीं अवसर मिलदा। जीवन दा फुल नित
नहीं खिलदा बार बार नहीं अवसर मिलदा सफल होए ओदा आना जाना संत सेवा उपकार कमाना सफल होए ओदा आना जाना संत सेवा उपकार कमाना जे तू गुरा दे राह उते चलना जे तू गुरां दे राह उत्ते चलना पाप न कर बंदिया पाप न कर बंदिया पाप न कर बंदिया पाप न कर बंदिया लिखा धर्म राज ने मंगना 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 पाप न कर बंदिया पाप न कर बंदिया पाप न कर बंदिया कर बंदिया पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिए चुन सत्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए हो जो सदा हमारे पछा तुझ जो करियो रक्षा राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंता हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चेटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद कर्क करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब वह कर्क करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोजे उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापत भेदा तांको कर पान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान महादेव को कहत सदा
सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पिव आपो आपनी बुध है जेती तो पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कै कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीने कुछ खान बहु रच देने कहूँ कुल राजा हव बैठा समट प्यो संकर बैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव अब रक्षा मेरी तुम करो त्योबार असक संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर इनके दुष्ट दुखत हव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने हैं रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट जाय निहरो आके तापत नगमो हरो और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए उमारा जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोग ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारे सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोग ते ले बचाए खड़ग केत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारे सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सेती मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सुना गला समरस स्वामी सुख मनो विसारे करे नानक मन मेरे सदा रो साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिदे सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जे करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया पाया तू जिनको से नाम रखे लागे कहे नानक दस को आदित करे नदवाजे अनंत सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे सुनी सच्ची बानी संत साधन पाए सबसे पूरे गुटे जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिनवंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पानी पिता माता तक मात जिसराग गाई गाया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाजे धर्म हदूर कर्मी आपो अपने जिन नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी
वाहेगुरु 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 मशक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।